Good morning, everyone. In the last class, we were discussing the problems based on the concept of tangents and normals. In today's class, I'll wind up with this topic, tangents and normals. Questions will be a little bit tricky, one or two at least. So be very, very careful. And those questions are in fact very standard type of a question, usually come in the board examination. Find the equations of tangent and normal to the parabola y square equal to 4ax at this particular point. So now this is a general kind of a situation given, hardly matters, method would be the same. Given curve, differentiate this, so 2y dy by dx, and that would be 4a, giving me dy by dx as 4a by 2y, that is 2a by y, and we are already given with a point. At what point? at square comma 2at. So replace that. y ही मुझे है यहाँ डेरिवेटिव में प्रेजेंट, तो विच इज 2at. सिर्फ y ऑर्डिनेट पार्ट पुट कर देंगे, ये कितना आ गया 1/t. दैट इज डेरिवेटिव को जब हम निकालते हैं तो ये क्या मिल गया मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट. रिमेंबर दैट बेसिक आइडिया. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. केस अब हम ले लेते हैं. देयरफॉर फर्स्ट थिंग, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. किस पॉइंट के ऊपर पूछा था, at स्क्वायर कॉमा 2at. तो वो क्या हो जाएगी, y minus y1 is m इंटू, m का मतलब स्लोप हो गया, इंटू x minus x1. You just need to cross multiply, so that would be ty minus 2at square, and this is equal to this. Rearrange, so x minus ty, and this is equal to minus at square. Combine the like terms. Choice is yours. You can bring this term to LHS also, and this is your required equation of the tangent line. तो चेक करो, आंसर इसी फॉर्म में आएगा, ax plus by plus c0. टेंजेंट है, it must be a straight line only. नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ, यस, So, 80 square पॉसिबल नहीं होगा. x माइनस ये नहीं, ठीक है, चेक इट आउट. रीअरेंज मैंने जो किया है, ये x इधर ही रखा, ये इधर लाकर माइनस हो गया, तो ये वाली टर्म इधर आकर प्लस हो जाएगी. तो माइनस 2at स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, माइनस at स्क्वायर आएगा. करके देख लेना, ठीक है. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y minus y1 is slope, or what will be the slope of normal. आप चेक करिए, 1/t था टेंजेंट का स्लोप, तो इसके रेसिप्रोकल कर दो और माइनस का साइन लग जाएगा, सो दैट इज माइनस टी. माइनस टी आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, बाकी सेम यही रहेगा. ओपन द ब्रैकेट एंड रीअरेंज, you will get the equation of normal. Before we move on, mark your attendance quickly.
Do it fast. Nine students out of 21 have marked the attendance. Everything is under recording, and believe me, I'll taking it as very seriously. You will realize the outcome of this in future. जब आपका बोर्ड के मार्क्स आ रहे होंगे, आपके इंटरनल की बात हो रही होगी. Do not think your teachers they are the fools और आप अपनी मर्जी से जो कुछ चाहेंगे ऑनलाइन मोड में करेंगे. This is highly irresponsible behavior on your side and highly disappointing for me as a teacher. Why are you paying so much of fee to the school then? रेगुलर स्टूडेंट क्यों बने हुए हो? ट्यूटर पे डिपेंडेंट रहना है, स्कूल से टीसी लो, प्राइवेट स्टूडेंट बन के दो, बहुत पैसा भी बचेगा आपके पेरेंट्स का. ऑफ कोर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करनी ही होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी कवर्ड जो मैं डिस्कस कर रहा हूं. जो मैंने पीडीएफ पे भेज दिया उतना भी कर लिया, दैट इज मोर देन एनफ. Prove that the curves x equal to y square and xy equal to k cuts at right angle if a k square is 1. तो पहली बात, कर्व्स कट एट राइट एंगल का मतलब क्या होता है? दिस इज द डेफिनेशन. टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल if tangent to the curve at the point of intersections are perpendicular to each other. What does that mean? कि अगर आपके पास मान लीजिए एक कर्व ये है और एक कर्व मेरे पास ये जा रहा था, तो इनके बीच में एंगल्स की जब मैं बात करूंगा तो एंगल बिटवीन द कर्व्स ये नहीं है. दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द कर्व्स. रिमेंबर दैट. एंगल कहां से मिलता है कर्व्स के बीच में? यू कंसिडर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये मान लो फर्स्ट कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन है और ये मान लो सेकंड कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन है. तो इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा, that angle is referred to as the angle between the curves. Again repeating, angle between two curves is nothing but the angle between the tangents drawn at the point of intersection of the two curves. So here what we are given, prove that the curves x equal to y square and xy equal to k, और उन्हें राइट एंगल की बात करी गई है. तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे. x इक्वल टू वाई स्क्वायर, आइडिया लग जाएगा कि मैं इसे डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूं. ये डिफरेंशिएट किया और दिस वुड गिव मी dy by dx as 1/2y. लेट मी अज्यूम के फर्स्ट कर्व ये है, सेकंड कर्व ये है. अगर आप लॉजिकली देखें तो फर्स्ट कर्व एक्चुअली देखा जाए तो पैराबोला था. सेकंड कर्व अगर आपको आइडेंटिफिकेशन हो तो इट इज एक्चुअली हाइपरबोला. हमने हाइपरबोला 11th में कुछ ऐसे फॉर्म में पढ़े हुए हैं. वी स्टार्टेड लाइक दिस, बट दिस इज xy equal to lambda is the another kind of the hyperbola. अगर मैं लैम्डा को 1 रख देता हूं तो xy आ जाएगा 1 के इक्वल, y आ गया 1/x, और याद करिए 1/x इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन.
उसका ग्राफ कुछ ऐसा गया था, 11th में आप ये पढ़ चुके हैं। तो दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ हाइपरबोला। एनीवे, अगर मुझे कर्व्स के बारे में पता भी नहीं है, हार्डली मैटर, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मैं उस पॉइंट को कह देता हूं x1 कॉमा y1। लिख देना ऊपर, लेट द कर्व्स इंटरसेक्ट एट x1 कॉमा y1। इसका मतलब व्हाट इज द डेरिवेटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जिससे मैं m1 कह दूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 y1 के ऊपर 1/2y1। याद रखिए ये आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1। नेक्स्ट क्या करते हैं, कंसीडर सेकेंड इक्वेशन, एक्स वाई इक्वल टू के। डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट है डेरिवेटिव के का 0, और इट गिव्स मी dy बाय dx इज माइनस वाई बाई एक्स। अगेन इससे मैं m2 लिख देता हूं, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, पॉइंट क्या है x1 y1, और वो दे देगा माइनस y1 बाय x1। दिस इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्दर क्या कहा गया था, अब कह रहे हैं प्रूफ कि कर्व अगर राइट एंगल पे कट करते हैं तब ये कंडीशन आएगी, सिंस कर्व्स कट एट राइट एंगल, इलेवेंथ क्लास का कंसेप्ट आ गया। इफ टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग, कर्व्स का मतलब इनके टेंजेंट्स की टर्म में बात होगी, वो मैं बाय डेफिनेशन बता चुका हूं। तो अब इनके टेंजेंट्स अगर उनका स्लोप था m1 एंड m2, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। व्हाट डज दैट मीन, पहले लाइन का 1/2y1 था स्लोप, नेक्स्ट दूसरे टेंजेंट का स्लोप था -y1 बाय x1, एंड दिस इज इक्वल टू -1। यस, y1 से y1 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, चेक इट आउट, x1 की वैल्यू आ गई है 1/2। यस भानु, करेक्ट। गिवन जो कर्व्स की इक्वेशन है, मैं उन्हें भी 1 एंड 2 कह देता हूं, ये 1 है, ये 2 है। नाउ x1 y1 जो है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इन दोनों कर्व्स की इक्वेशंस को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाई कर रहा है इस कर्व के ऊपर एंड इस कर्व के ऊपर। व्हाट डज दैट मीन, सेटिस्फाई करवा दो इक्वेशंस को, तो ये भी आ जाएगा मेरे पास। एंड दूसरा केस क्या आ जाएगा, x1 y1 that will also equal to k। The point x1 y1 lies on the curves। तो कर्व्स के ऊपर अगर पॉइंट लाई करता है तो नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट है, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। बस अब आप x1 की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए बोथ द प्लेसेस। तो चेक करिए क्या आ जाएगा, x1 की जगह हाफ रखा, इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ y1, कितनी आ जाएगी, ±1/√2। अगेन ये y1 और x1 की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दीजिए, x1 की जगह 2, y1 की जगह 1 ±1/√2, और ये k के इक्वल है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, प्लस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और चेक करो 2√2 का होल स्क्वायर 8 आ जाएगा।
ये दे देगा k स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, हेंस प्रूव्ड। यही हम चाहते थे देखना। यस, y जो है वो प्लस माइनस 1/√2 आएगा भानु, इट्स नॉट ओनली पॉजिटिव। वो बाद में ठीक है वो स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो रहा है, बट कंसेप्चुअली एक्चुअली दीज टू कर्व्स, पैराबोला और हाइपरबोला जो हैं, ये दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सब लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से समझिए। Try it out, I'm waiting. This is what we already have studied in 11th class. Y square is equal to 4ax. It is a right parabola passing through the origin. Yeah, that is what I just mentioned. भैया आप भूल रहे हो, आपके पास y square is equal to 4ax. This is a right parabola. तो बस आप एक ही जगह ये ज्यूम करो, अगर 1/4 होता तो आ जाता कर्व y स्क्वायर इज x ओनली। तो ये भी तो एक पैराबोला ही हुआ। So unless you have the good understanding of class 11th basic concepts, I'm not talking about the higher level problems या typical चीजें, बेसिक हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन कम से कम होना चाहिए कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है वो एक पैराबोला है। कैसा पैराबोला है अभी डायग्राम बना के भी दिखा दिया है, इट्स अ राइट पैराबोला। चलिए चेक आउट दिस क्वेश्चन। Find the equation of normal to this curve, again parabola है, x square equal to 4y, this is your upper parabola। ये ऐसा पैराबोला है एक्चुअल, अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो वो ऐसा कुछ है। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू दिस कर्व which passes through 1, 2। How will you do this? चेक करिए, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है, मैंने इसे डिफरेंशिएट करा 2x और ये आ गया 4dy/dx, और इससे dy/dx आ जाएगा x/2। पॉइंट क्या गिवन है 1, 2, 1, 2, तो x को 1 रख दिया, 1/2 आ गया, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप याद रखिए -2 हो जाएगा एंड x माइनस x1। सो y -2 इज
माइनस 2x+2 और 2x+y इज इक्वल टू 4, राइट। तो प्रणव, एज यू हैव मेंशन्ड, आंसर ये लग रहा है कि आना चाहिए। द कंसेप्ट यूज्ड इज टोटली रॉन्ग। ये क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्कर आया था, 6 मार्कर क्वेश्चन है ये। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो एक छोटी सी चीज है जो मिस कर दी, और उस छोटी सी चीज से सारे नंबर गए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं रखा, और वो क्लास 9th में स्टडी करा है। एवरीवन बी वेरी फोकस्ड। ये सब कुछ जो मैंने लिखा है ये गलत है। Why? Can anyone explain? Where is the mistake in this solution? बहुत बेसिक चीज है जो आपने इग्नोर कर दिया है, जो सुन रहे हैं और साथ साथ सोच भी रहे हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सॉल्यूशन? भाई मेरे को कर्व गिवन है, मुझे पॉइंट गिवन है, आप सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज ओके। हाँ, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल दैट इज नॉट द मिस्टेक। एनीवे, चलो लेट मी कम टू दिस पार्ट। मैं आपको एक मिस्टेक छोटी सी बता देता हूँ। आपने जब ये कर्व लिया और ये मान लो पॉइंट ले लिया 1,2, उसके ऊपर ये टेंजेंट है, तो आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये निकाल दी, राइट। आपने एक चीज एज्यूम कर ली कि ये 1,2 जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है। पुट करके देखें, 1,2 व्हेन x इज 1 और y is 2, 1 is equal to 8. Check out the, yes समृद्धि, the value जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर तो लाई ही नहीं कर रहा है। रिकॉल क्लास 9th का बेसिक आइडिया कि अगर मेरे पास कोई कैसा भी कर्व गिवन है, इक्वेशन मुझे सिर्फ पता है वो पॉइंट में चेक करूंगा, अगर लाई कर रहा है तभी तो यहाँ ऐसे आ सकता है। ये पॉइंट इस कर्व पे लाए ही नहीं कर रहा है। सो ग्राफ अगर मैं इसका रफ इमेजिन करूं तो वो क्या जाने वाला है, चेक आउट नाउ। ये मेरी एक्सेस आ गई हैं, देन आई हैव द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एंड सिंस पॉइंट इज 1,2, एक अंदाजे से सोचिए 1,2 कर्व पे तो लाई नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं यहां होगा। सो दिस इज माई पॉइंट 1,2। और अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच पासिस थ्रू 1,2। तो अगर आप रिवर्स में सोचिए, ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये इस किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट रहा होगा। तो व्हाट इज दिस पॉइंट एक्चुअली? जब तक ये पॉइंट नहीं पता होगा उस कर्व के ऊपर, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1। x1 y1 जो है अब ये कर्व पे लाई कर रहा है। सो एक तो मुझे x1 स्क्वायर की वैल्यू पता है, एक ये इक्वेशन तो चलो मुझे पता है। अब आप जरा वो यूजुअल मेथड से कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इज 4y, डिफरेंशिएट किया, रीअरेंज किया, dy बाय dx कितना आ गया आपका x/2। बट अब मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, dy बाय dx एट
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है x1 y1 x1/2, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2/x1, इसका रेसिप्रोकल और माइनस से मल्टीप्लाई। व्हाट इज माय इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल? चेक करिए, पॉइंट है x1 y1 और स्लोप है ये -2/x1। This would become the equation of the normal. अब ये नॉर्मल कौन सी लाइन की बात हो रही है? चेक दिस आउट, ये वाली लाइन, मैंने इसकी इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन के ऊपर 1,2 लाई कर रहा है, 1,2 लाइज ऑन इट। तो चेक करिए क्या करेंगे अब यहां, x1 y1 नहीं है, x1 y1 तो ये वाला पॉइंट है, यहां अलग है, तो x और y को रिप्लेस कर दीजिए, तो y की जगह 2 आ जाएगा एंड x is 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x1 minus x1 y1 is -2, then minus plus 2x1, 2x1 cancelled out, नेगेटिव कैंसल, x1 y1 आ गया 2 के इक्वल। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 2। सॉल्विंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन है x1 y1 में। सॉल्विंग 1 एंड 2, मैं यहां से चलो y1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, 2/x1, तो x1 स्क्वायर विल बी 4 times y1 और x1 क्यूब इज 8 और x1 आ गया 2 के इक्वल। यूजिंग इन वेयरएवर से यूजिंग इन इक्वेशन 2 कर देते हैं, x1 into y1 is 2 which gives me y1 as 1। तो एक्चुअल में जो पॉइंट था वो रहा था 2,1, नॉट दी 1,2। तो जो मैंने ये लिखा था ये गलत हो गया, क्योंकि कंसेप्ट हमने मिस कर दिया। वंस नॉर्मल ये आ गया तब तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल आसानी से लिख देंगे। यहां पर x1 कितना निकाला मैंने, 2 के इक्वल, तो ये आ गया -1 और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वुड बी y minus y1 is slope into x minus x1। Now when you open the bracket and rearrange, x plus y is equal to 3, your required answer। Please make a note of it, लॉजिकल क्वेश्चन गया है ये। एग्जाम में जब आया तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ने बोर्ड में ये लिख दिया कि क्वेश्चन गलत है, ये 1,2 की जगह 2,1 होना चाहिए था। दे हैव रियलाइज्ड कि ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा एंड दे अज्यूम्ड विदाउट सॉल्विंग कि चलो 2,1 कर रहा है। तो लकीली उससे उनका आंसर मैच कर गया, बट कंसेप्ट वाज नॉट करेक्ट, तो ओनली 1 मार्क वाज गिवन इवन इन दैट केस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल है, बट नॉर्मली वी मिस लुकिंग एट द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सेम क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, दिया एमसीक्यू की फॉर्म में है, और जबकि ये देखा जाए तो इतना लंबा सॉल्यूशन है। तो व्हाट टाइप ऑफ अ एमसीक्यू मे कम इन द एग्जामिनेशन?
इफ इन केस एट ऑल फ्यू ऑफ यू आर हैप्पी कि बोर्ड का पेपर में हमारे पास ज्यादातर एमसीक्यू ही आने वाले हैं, तो इट वुड बी सो इजी फॉर अस, यू आर मिस्टेकन. It will create a bigger challenge for you if you are self dependent. और एक का गलत, और अगर आपने चीटिंग का किया तो हर एक का गलत होगा, ये भी याद रखना. तो एमसीक्यू हैज क्रिएटेड अ बिगर चैलेंज. नॉर्मल सॉल्व करना फिर होता है कि कहीं आधा एक दो नंबर मिल जाते हैं. एमसीक्यू में या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा. बट अब आपका एग्जाम का पैटर्न वो अकॉर्डिंगली जो है, अभी अगर मैं बात करूं सेमेस्टर 1, तो वो एमसीक्यू बेस्ड है, राइट. तो वो 40 मार्क एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजनिंग प्लस केस स्टडीज प्लस fill in the blank matching what type of a question may come, that is not made clear by CBSE till date. Objective paper आने वाला है, right. But unless you have a good written practice, अब यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आप तुक्के लगाने शुरू कर दो तो ठीक है, कुछ भी मार्क कर दीजिए. अनलेस यू हैव द बेसिक आइडिया, ये सॉल्व नहीं करोगे, यू कैन नॉट अटेम्प्ट एनी ऑफ द एमसीक्यूज. So we need the written practice at the same time. Remember that. We cannot go away with that कि MCQ की प्रैक्टिस है, लिखे बिना बस मैं डायरेक्ट आंसर निकालने की टेक्निक सीख लूँ. इट्स नॉट गोइंग टू बी योर IIT पेपर या योर नीट पेपर जहां आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लॉजिक लगाना है और आंसर लिखना है. हर बार वो पॉसिबल नहीं होगा, ये याद रखिए. Show that the curves xy equal to a square and x square plus y square is 2a square touch each other. Can anyone tell me first curve कौन सा है? Which specific curve is this? xy equal to a square. A square is constant, तो xy equal to lambda लिखूं या a square? Yes. In the last question we already discussed this, Pranav, correct? It's hyperbola. So again डायग्राम से ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं रिक्वायर्ड. बट ये हाइपरबोला. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन? x square plus y square is equal to r square. This is a circle. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के एक्चुअल डायग्राम की बात करूं, बिकॉज माई एम्फेसिस इज ऑलवेज ऑन द ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन. विजुअलाइज अगर आपने कर लिया मैथ्स को, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. दिखेगा कि ऐसे कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं. बिलीव मी ऑन दैट. आई क्लोज माई आईज व्हेन आई टीच. मुझे ये डायग्राम दिखाई दे रहे होते हैं कि कैसे कर्व कट कर रहे होंगे. ऑफ कोर्स इट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, बट एटलीस्ट आपके लेवल पे भी अगर मैं बात करूं तो इतना तो देख सकते हैं कि ये सेंटर 0 0 रहा होगा, कोई सर्कल गया होगा, और हाइपरबोला की भी बेसिक शेप मुझे पता है, गारंटेड वो ऐसा जा रहा होगा. ये तो ये इन पॉइंट्स के ऊपर एक्चुअल में टच कर रहे हैं, पर आपको ज्योमेट्रिकली नहीं दिखाना. ऑफ कोर्स you need to solve this algebraically, but that is a fundamental idea कि क्या हुआ होगा इस क्वेश्चन में. चलिए क्विकली चेकआउट. आपके पास कर्व्स को जब टच करके दिखाना है तो बेसिक आइडिया, एक लॉजिक लगाइए. सोचे जरा यहाँ ध्यान से, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट गया होगा, अगर इस टचिंग वाले पॉइंट पे टेंजेंट गया होगा, डोंट यू थिंक सो? ये एक तो टेंजेंट पैरेलल होंगे, और दूसरी बात यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा होगा. इन अदर वर्ड, अगर टेंजेंट्स का स्लोप
पहले वाले सर्कल का अगर टेंजेंट की बात करूं, उसका स्लोप m1 था, पैराबोला का m2 था. If they are touching, they must have the same slope, and it means m1 should equal to m2. Anyway, xy equal to a square, डेरिवेटिव करते हैं. dy बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास माइनस वाई बाय एक्स के इक्वल. आप x1 कॉमा y1 भी ले सकते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फिर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया और dy बाय डी एक्स आ गया माइनस एक्स बाय वाई. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. इसे कह दिया m1, दिस इज माय m2. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 will equal to m2. It gives me एक बार चेक कर लो मैंने स्लोप सही निकाले हैं. दूसरे वाले का स्लोप 2x 2y डिवाई बाय यस दिस इज 0 माइनस एक्स बाय वाई. ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसल. एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज 0. एक्स कॉमन x minus y. So either x is 0 or x is equal to y. केस 1 केस 2 आप कर देना और चेक कर लीजिए व्हेन x is 0. कहीं मुझे लग रहा है कोई लास्ट कहीं कोई गलती हुई है. पॉइंट मेरे पास अलग आने चाहिए थे. माइनस वाई बाई एक्स इक्वेशन 1 इज करेक्ट. माइनस एक्स बाय वाई दिस इज करेक्ट. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप्स इक्वल कर दिए. ये सेकंड वाला m2 मैंने गलत लिख दिया. ये माइनस एक्स बाय वाई लिखना था यहाँ. तो एक ना एक छोटे सी अगर ऐसे लिखने में जल्दी में गलती हुई, बस इससे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स आ जाएगा प्लस माइनस वाई. देन यू कैन इजीली चेक आउट, पुट इट ओवर हियर. दे बोथ आर इक्वल, hence curves are touching each other. So complete this. Last step सिर्फ रह गया है in your homework, followed by this question for your homework. And here is a set of the questions, selective questions only from tangent and normal, are following 5 questions and the following 5 questions. तो जितना मैंने करवाया है और ये 10 questions. Everything, any type of a question is covered via if you complete these 10 questions along with the work and all questions discussed. Mark your attendance and then you can leave the class. Quickly, yes, now you can leave the class.